प्रोसीजर क्या होता है टू एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ब्लॉकचेन्स? सिंगल स्किल सेट नहीं मांगता, वो ग्रुप ऑफ स्किल्स मांगता है। लेट्स से यू शुड नो डॉकर, कुबरनेटिस, क्लाउड का अच्छा मतलब नॉलेज होना चाहिए आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए। यू मस्ट नो द क्रिप्टोग्राफी, व्हाट ऑल द डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक्स वी हैव टेक, एंड साथ में आपको नोड.जेएस या गोलैंड की काफ़ी अच्छी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। What are the companies that come in your mind when you talk about the public blockchains and the private blockchains? Public blockchain is like Ethereum, Polkadot, Polygon, Solana, राइट? ये चेन्स है और ये कुछ कंपनी भी है, तो इनके बेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट कुछ एप्लीकेशंस भी बने हैं, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज वॉलेट है। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना कितना वर्थ इट होता है, और एग्जैक्टली व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी? सो सिंस यू already connected with a lot of people in the community and you're already working as a blockchain developer, तो आपके अकॉर्डिंग what sort of projects a student should make जो कि उनके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करे? Hi everyone, my name is शिवांगी तिवारी and welcome back to my channel. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ अक्षय हैं, हु इज़ अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो मेरी लास्ट ब्लॉकचेन वाले वीडियो पर आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ब्लॉकचेन पर एक डिटेल्ड वीडियो फिर से बनाते हैं। आई विल बी कवरिंग सम पार्ट्स ऑफ दैट वीडियो, लेकिन जो फ्रेश इस वीडियो को देख रहा है उसको भी एंड टू एंड पूरी नॉलेज मिलेगी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स, एंड देन फर्दर आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कम इनटू दिस टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट टूल्स एंड रिसोर्सेज यू शुड फॉलो। सॉलिडिटी अगर पढ़ना है तो उसको पढ़ना कैसे है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देन फर्दर एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो आपको जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, end to end we will cover everything in today's video. So for that I will welcome Akshay. As I told you कि he's a blockchain developer, इनको काफ़ी अच्छा experience है blockchain technology में, and he also has a YouTube channel. He's a content creator where he creates content around blockchain. So I think he'll be a perfect person to guide us on this. So hi Akshay, welcome to my channel. How are you doing? Thank you Shivangi, thank you for having me here on your YouTube channel. I'm doing good, fantastic, like little big work stress is there, but yeah, doing good. Can you briefly introduce yourself to my audience? Yeah, sure. So from around past 5 years, I was working in this IT field, and I have overall 3 years of experience in blockchain developer. I started my journey as a web developer when I was in second year. At that time only I started doing internships with multiple firms like in e-commerce, education, edutech fields, and some. Then later when I was in a part of Google developer community, I explored the blockchain tech, and I learned a lot about blockchain tech. At that time, we created multiple projects and start with Solidity. Then I entered into the private blockchain. Now recently I am a part of Hyperledger India chapter community as well, and working as a full-time blockchain developer in private blockchain sector. So yeah, that's the thing. It's a short intro. Yeah. Awesome. So Akshay, like you told a brief, but I want to know in detail like how your blockchain journey actually started. Okay. So actually it was so interesting. Previously, as I mentioned, I started my journey as a full stack developer, or you can say that web developer. In back days, I was learning, we are developing products on web technology using JavaScript, SQL, that PHP as backend, and then tech stack changed suddenly. Then we moved toward React.js, Node.js, and all those stuff. But I realized one thing: this is so common. Akshay, what you are doing extra? What extra effort you are putting in the community? This is everyone is doing full stack, everyone is doing front end, back end. What extra you are doing? Then I start looking for some different tech. I explore AI, ML, and I found blockchain as well. So I found blockchain so interesting. I just envisioned the thing कि भाई ये कितना दूर जा सकता है। तो मुझे लगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ स्कोप। व्हाई? बिकॉज इट्स न्यू टेक। इट्स नॉट जस्ट न्यू टेक, इट्स अ कंसेप्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम और डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स, विच फैसिनेट्स मी लॉट. आई गेट इनटू द क्रिप्टो मार्केट, like I learn about the crypto. I learn both the aspects of blockchain, not just public blockchain, but along with that private. I connected with my folks who is actually doing hands-on in the blockchain, so which fascinates me, and then I started my blockchain journey from there itself. It was starting days was so struggle. टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आती थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे, बट या आई फिगर इट आउट. अक्षय, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो जनरली दिमाग में सिर्फ क्रिप्टो या बिटकॉइन आता है. सो इज दिस इट या देयर आर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स एज वेल, अदर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन्स एज वेल?
हाँ, यहाँ पे ब्लॉकचेन में देखो, इट्स लाइक सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ब्लॉकचेन का वो एक यूज केस है। ब्लॉकचेन इज सो बिग टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसके अंदर प्राइवेट ब्लॉकचेन आता है, पब्लिक ब्लॉकचेन आता है। जो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर है ना, बिटकॉइन और क्रिप्टो वाला एक यूज केस है, ठीक है। इसके अंदर हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी होता है। ब्लॉकचेन इज अवर नेटवर्क। उस नेटवर्क को यूज करके आप खुद किस टाइप के एप्लीकेशन बनाते हैं वो डिपेंड करता है, उसको हम एज अ यूज केस कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो प्राइवेट में सबसे फेमस है जो जिसकी बूम स्टार्ट हुई थी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन आइडेंटिटी मैनेजमेंट आता है यूज केस। देन डिसेंट्रलाइज लेजर, हाउ यू आर स्टोरिंग योर डेटा डिसेंट्रलाइज, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूज केस आते हैं इसमें। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी डिटेल्ड प्रोजेक्ट आइडियाज़ की लिस्ट भी बनाई है। आई थिंक अराउंड 18 वीडियोज़ है उसमें, जहाँ पे हमने बात की है व्हाट इज़ डिजिटल आइडेंटिटी, हम डिजिटल आइडेंटिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं। डेटा ओनरशिप हम यूज़र के पास में कैसे रखते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द एनी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो ब्लॉकचेन का मेन ही कंसेप्ट ये है कि तुम लाइक सेंट्रलाइज कंसेप्ट से तुम डिसेंट्रलाइज में कैसे मूव हो रहे हो। जो डेटा तुम्हारा ओन करती है, लाइक मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि इशू यही है कि हमारा जितना भी डेटा होता है, लेट्स से फेसबुक डेटा, गूगल डेटा, जो भी डेटा है हमारा, इवन आइडेंटिटी, पर्सनल डेटा, एक जगह पे, सेंट्रल जगह पे स्टोर होता है, राइट। तो ब्लॉकचेन का कंसेप्ट सिंपल है कि तुम ये इसको खुद किसी सेंट्रल अथॉरिटी को मत दो, अपना डेटा अपने पास में रखो। सो दैट्स वी कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज। तुम्हारी डेटा ओनरशिप तुम्हारे पास में रहेगी। यू डोंट हैव टू सेल योर डेटा, लाइक you don't have to give your data without your permission. If you want, willingly you can sell in decentralized mode. So ये जो अलग अलग टाइप के ब्लॉकचेन्स होते हैं, अगर स्पेसिफिकली पूछूं कि इनका रेलेवेंस क्या होता है, सो व्हाट विल इट बी? प्राइवेट ब्लॉकचेन इज लाइक एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन। मान के चलो अभी मेरे पास में सप्लाई चेन का एक यूज केस लेते हैं। सप्लाई चेन में क्या होता है, आई हैव टू ट्रैक अ जर्नी ऑफ एंड टू एंड एटम। लेट्स से एक मैंगो है, मुझे पता करना है, कोई कंपनी क्लेम करती है द सेलर लाइक दिस इज ऑर्गेनिक मैंगो, बट मुझे कैसे पता रहेगा एंड यूजर को? मुझे उसकी ट्रेसेबिलिटी चाहिए, मुझे ट्रैक करना है कि वो कहाँ पे ग्रो हुआ, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन से लाइक वेंडर्स ने उसको खरीदा, एंड देन वो अभी जो सेलर जो सेल कर रहा है वो सच में उसकी ट्रैक जेन्युइन है या नहीं है। तो क्या होता है, हर एक स्टेज पे उस पर लेट्स अज्यूम हम QR कोड लगाते हैं, और हर एक स्टेज पे वो QR कोड स्कैन होगा और उसका जो डेटा होगा वो एक स्टोर होगा लेजर पे। सो लेजर इज लाइक वी कॉल दैट अ पब्लिक लेजर, जहाँ पे अगर कोई भी डेटा एक बार गया तो वो डेटा चेंज नहीं हो सकता। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन अ पब्लिक मैनर। प्राइवेट सेक्टर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने डिस्ट्रीब्यूशन चेन सेटअप किया है, वो भले एक प्राइवेट एंटिटी है, बट एंड यूजर को वो ट्रेसेबिलिटी मिलती है कि तुम्हारा जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। लाइक हमारे मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट भी होते हैं और जेन्युइन प्रोडक्ट भी होते हैं, तो इनको कैसे हम डिफर करें, हमें किस तरीके से उसको ऑथेंटिकेट करें। So, वो एक प्रोसेस होती है कि आप उसका ट्रेल देख लो, उसकी आप हिस्ट्री देख लो, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ पे वो असेंबल हुआ, एंड कहाँ से उसका वेंडर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये एक एग्जांपल होगा। अभी दूसरा इसका एग्जांपल देता हूँ मैं पब्लिक ब्लॉकचेन का। पब्लिक ब्लॉकचेन में एग्जांपल काफ़ी सिंपल है। ब्लॉकचेन का जो बूम स्टार्ट हुआ वो पब्लिक से ही स्टार्ट हुआ। लाइक फाइनेंस में सबसे पहला आता है क्रिप्टो करेंसी से जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई हमारी बिटकॉइन का मेन मोटिव ये था कि मुझे डिजिटल करेंसी चाहिए एंड जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सके थ्रू आउट द ग्लोब, एक ही करेंसी। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन रुपीज़ है, यूएस में डॉलर है एंड ऑल दोज थिंग, राइट। बट बिटकॉइन इज वैलिड थ्रू ग्लोब, ठीक है। तो वो एक कंसेप्ट है, हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ पे क्या किया था इन्होंने, गैस का कंसेप्ट है कि जो भी माइनर्स होंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो तब जाके वो माइनिंग पूल बने। देन उसका लिमिट जो करेंसी, उसकी लिमिट नंबर ऑफ करेंसी होती है, वो ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम मनी कैसा होता है एन नंबर ऑफ अमाउंट्स हम प्रिंट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट डिसीजन, राइट। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स है। जब उसके कॉइन खत्म हो जाएंगे प्रिंट करना, वो स्टॉप हो जाएगा, बट उसकी वैल्यू बढ़ेंगी। फिर जो उसका यूज केस है, वो ऐसा नहीं कि वो बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, नहीं, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेंगी विथ रिस्पेक्ट टू यूज केस, कि आप वहाँ पे उसको किस जगह पे यूज कर रहे हो, आप बिटकॉइन यूज करके क्या बाय कर रहे हो। बिटकॉइन इज ए करेंसी, इट्स नॉट अ एसेट। तो वो एक यूज केस आ जाता है पब्लिक में। सो ऐसे अगर देखा जाए तो जो बिटकॉइन का, या जो मैं कहूँ कि ब्लॉकचेन का मार्केट है, वो कितना बड़ा है? अगर हम ऐसे सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें, इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ जॉब, तो ये मार्केट कितना बड़ा है? एक्चुअली मार्केट ये बहुत बड़ा है। अभी तो काफ़ी, मतलब लेट्स अज्यूम ब्लॉकचेन इज जस्ट अ किड, इट्स अ बेबी। अभी तो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। अभी तो मतलब इवन डेवलपर्स ऑल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द ब्लॉकचेन।
बिजनेसेस पहले तो अभी हम्म बिजनेसेस समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है भाई, ठीक है। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उनको समझेंगे तो वो उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, देन दे विल रन मल्टीपल पीओसीज। जब मल्टीपल पीओसी सक्सेस होगी तो वो रियल इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट होंगे। तो जो अभी फेज चालू है ओवर द ग्लोब वो पीओसी का फेज चालू है। बहुत सारे बिजनेसेस पीओसीज रन कर रहे हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट्स, इवन इन इंडिया वी हैव द फेमस ऐप नाउ। देयर इज टू बिग थिंग्स which India started with respect to blockchain. One is CBDC, Central Bank Digital Currency, and the one DG Yatra. So DG Yatra जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो you can with respect to your face आप वैलिडेट कर सकते हैं कि so you are or not. तो ये जो है इनिशिएटिव जो स्टार्ट किए, जो प्रोजेक्ट्स है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। तो इस तरीके से जैसे जैसे अवेयरनेस स्प्रेड होंगी, इट्स डिपेंड ऑन अवेयरनेस एंड दी रिसोर्स, डेवलपर्स को कितना नॉलेज होता है, और धीरे धीरे बहुत बड़ा होने वाला है ये आई थिंक ब्लॉकचेन का मार्केट। इवन ग्लोबली भी काफी अच्छा इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, और इंडिया आई थिंक लीडिंग सो फार इन द ब्लॉकचेन स्पेस। ओह इज इट? या यस, इन प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली, लाइक प्राइवेट ब्लॉकचेन। समझ गई। सो इट्स लाइक कि अभी जो फेज है दैट इज मेजरली अ रिसर्च बेस्ड फेज, बट इवेंचुअली धीरे धीरे एज रिसर्च विल लाइक हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, तो उसके बाद डायरेक्ट जॉब्स भी बहुत सारी आने वाली हैं। सो लाइक वी टॉक्ड अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ब्लॉकचेन्स, सो प्रोसीजर क्या होता है टू एंटर इनटू पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ब्लॉकचेन्स? या गुड क्वेश्चन। तो प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन ना एक थोड़ा सा लिंक है एक दूसरे से। सबसे पहले आपको हमेशा पब्लिक ब्लॉकचेन से स्टार्ट करना होता है, बिकॉज पब्लिक ब्लॉकचेन इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। आपको कोर कंसेप्ट समझ में आता है, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉक, हाउ ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द सेकेंड ब्लॉक, राइट। वो नेटवर्क कैसे बनता है, व्हाट इज नेटवर्क एंड व्हाई नेटवर्क इज इंपॉर्टेंट इन ब्लॉकचेन, व्हाट इज माइनिंग, और ऐसे बहुत सारे टर्म समझ में आते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप पब्लिक ब्लॉकचेन सीखते हैं अच्छे से, एंड नॉट जस्ट हैव टू टेक, आपको टेक नहीं समझना है, आपको सबसे पहले उसका यूज केस समझना है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जब आप इसका एप्लीकेशन समझ जाओगे, इसका यूज केस समझ जाओगे, तो इट्स विल बी सो सिंपल एंड ईजी टू यू। देन साथ में जब आपके एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाते हैं, देन यू कैन मूव ग्रेजुअली टूवर्ड्स प्राइवेट ब्लॉकचेन, क्योंकि प्राइवेट ब्लॉकचेन हैज लिटिल कॉम्प्लेक्सिटी। वो एक सिंपल, मतलब आई कैन नॉट से कि अगर आप मुझे सॉलिडिटी आता है तो मैं प्राइवेट ब्लॉकचेन में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक सिंपल स्किल, एक सिंगल स्किल सेट नहीं मांगता है, वो ग्रुप ऑफ स्किल्स मांगता है। लेट्स से यू शुड नो डॉकर, कुबरनेटिस, क्लाउड का अच्छा मतलब नॉलेज होना चाहिए आपको नेटवर्क आर्किटेक्चर का नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट नो द क्रिप्टोग्राफी, व्हाट ऑल द डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक्स वी हैव, टेक्निक्स वी हैव, राइट। एंड साथ में आपको Node.js या Golang की काफ़ी अच्छी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। गॉट इट। सो जैसे मान लो किसी को एक मैं सिंपल लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ, जैसे जावा हो गया या पाइथन हो गया या सीपीपी हो गया, किसी को ये बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा सॉलिडिटी इज वन लैंग्वेज, बट कंसेप्ट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अभी अलग अलग लैंग्वेजेस भी आ रहे हैं, जैसे हम प्राइवेट ब्लॉकचेन में Golang और Node.js यूज करते हैं, बट पब्लिक में सॉलिडिटी या वाइपर यूज करते हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द की, एंड द नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। गॉट इट। सो जैसे मान लो किसी को एक मैं सिंपल लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ, जैसे जावा हो गया या पाइथन हो गया या सीपीपी हो गया, किसी को ये बेसिक लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसके लिए कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट होगा सॉलिडिटी सीखना? सॉलिडिटी इज अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली। अगर आपको अच्छे से एक कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे सीपीपी या जावा, तो यू कैन लर्न सॉलिडिटी इजीली। बट उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें गैस वैल्यूज और ट्रांजिशन बेस्ड आर्किटेक्चर बना होता है उसका, बट यू कैन लर्न द सिंटैक्स एंड सिंटैक्स इज प्रीटी मच सेम ओनली। और लॉजिक वाइज कितना डिफरेंस होता है? लॉजिक वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसके अंदर हम जो क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज करते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। और यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इसलिए मैं नेटवर्क एज अ कीवर्ड बहुत बार बार बोल रहा हूँ। हम जब नॉर्मल कोई प्रोग्रामिंग करते थे, हम कभी भी नेटवर्क को ध्यान में नहीं रखते, वी जस्ट सिंपली थिंक बेस्ड ऑन यूजर, कि यूजर का रोल अगर ये होगा तो ये पॉपअप होगा, और दूसरे यूजर अगर मेरा एडमिन होगा तो उसको कुछ डिफरेंट प्रिविलेज रहेगा, लाइक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वी हैव टू थिंक कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको कैसे दिखेगा, एक अकाउंट टू दूसरे अकाउंट पे चीजें जाएगी तो वहाँ पे कैसे होगा। इट्स अकाउंट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर सॉलिडिटी में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है। तो जैसे मुझे मान लो लेट्स से मुझे सीपीपी आती है और अब मैं सॉलिडिटी सीखना चाहती हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर मैं डेडिकेटेडली बैठ के सॉलिडिटी या कोई भी लैंग्वेज सीख रही हूँ ब्लॉकचेन के लिए स्पेसिफिकली, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? ओके, अगेन टाइम इट्स डिपेंड ऑन द यूजर, कि आप कितनी जल्दी उसको पकड़ पाते हैं। सबको सेम नहीं लगता है, राइट। सबकी लर्निंग कर्व एक अलग होता है, बट मोस्टली आई थिंक
एक दो हफ्ते में आप बेसिक समझ में आ जाएगा आपको कि ये काम कैसे करता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसके टूल्स कौन से हैं, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। और जैसे जैसे यहाँ पे ERC कंसेप्ट बने हैं, लाइक ERC टोकन होता है कि स्टैंडर्ड्स बने हैं, जैसे कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड्स बना के रखे टोकन्स के। with respect to use case, you have to use those standard to achieve your or to create any product or application. तो वो स्टैंडर्ड्स को भी समझना नेक्स्ट लेवल होती है। पहले तो आपको बेसिक समझना होता है हाउ दिस प्रोग्रामिंग वर्क, फिर उसके बाद में आप स्टैंडर्ड्स को समझते हो उसके। ठीक है, तो मतलब मैं मोटा मोटा मान लूँ कि अगर 2 से 3 हफ्ते बेसिक समझने में लग रहे हैं तो लैंग्वेज सीखने में मुझे लगता है 3 महीने मैक्स टू मैक्स लगेंगे अगर कोई डेडिकेटेडली पढ़ रहा है तो, राइट? फेयर इनफ, हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम है वो 3 महीना। यस, गॉट इट। तो अभी हम कुछ टाइम पहले पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन्स की बात कर रहे थे। सो व्हाट आर द कंपनीज दैट कम इन योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट द पब्लिक ब्लॉकचेन्स एंड द प्राइवेट ब्लॉकचेन्स? पब्लिक ब्लॉकचेन इज लाइक इथेरियम, पोल्काडॉट, पॉलीगॉन, सोलाना, राइट। ये चेन्स है और एक कंपनी भी है। तो इनके बेस्ड ऑन टॉप ऑफ इट कुछ एप्लीकेशंस भी बने हैं, जैसे बहुत सारे एक्सचेंज वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है। दीज ऑल आर पब्लिक कंपनीज, ठीक। और जो प्राइवेट आती है, प्राइवेट इज लाइक डीजी यात्रा हो गया या हाइपरलेजर हो गया, कोडा एंड ट्रस्ट ग्रिड। दीज ऑल आर प्राइवेट कंपनीज विच इज रन ऑन प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, तो अब चलो क्रिप्टो की थोड़ी बात करते हैं कि ऐसे तो मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना कितना वर्थ इट होता है, और एग्जैक्टली व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी? ओके, देखो पहले क्या है क्रिप्टो करेंसी वो समझते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बिटकॉइन का एग्जांपल दिया था। क्रिप्टो करेंसी उसके नाम में लिखा है कि वो इट्स लाइक डिजिटल करेंसी। वो कोई एक एसेट नहीं कंसिडर कर सकते। जिस तरीके से जो अभी करंट सिनेरियो है, लोग उसको कोई करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखता है, देन दे वेट कि वो कब फ्लक्चुएट होगा, कब उसके प्राइस बढ़ेगी और कब मैं उसको सेल कर दूंगा, राइट। बट आइडियल केस में ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइडियल स्किल में होता है कि ये एक आपके पैसे है, आप पैसे को यूज करके कोई चीज बाय कर रहे हैं। लेट्स से NFT, यूजिंग बिटकॉइन और यूजिंग एनी क्रिप्टो करेंसी, यू आर बाइंग NFT। और वो NFT की वैल्यू जब कम ज्यादा होगी तो आप NFT को बेचोगे यूजिंग क्रिप्टो ओनली। तो ये होता है आइडियल सिनेरियो। क्रिप्टो करेंसी इज योर करेंसी, इट्स नॉट अ एसेट। एंड जो चीज आप करेंसी से यूज करके बाय करते हैं ना, उसको एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज है, इट्स लाइक अ नॉर्मल योर मनी ओनली। क्रिप्टो करेंसी इज मनी बट इट्स जस्ट अ डिजिटल करेंसी। वो आपकी हार्डवेयर मतलब फिजिकल करेंसी नहीं है, ठीक। अभी आते हैं कि वो कितना वर्थ है और कितना नहीं है। हाँ। सो अभी का मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्टेबल नहीं है। जैसे अवेयरनेस की एक यहाँ पे इशू है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। लोग क्या है ना, एक हाइप, इसको मोस्टली मैं हाइप बेस्ड ब्लॉकचेन भी बोलता हूँ, पब्लिक ब्लॉकचेन को, कि लोग अंधाधुंध इसको फॉलो कर लेते हैं। एक ने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी अच्छा है, इसमें पैसे बनते हैं, तो सब जन वो बाय कर लेते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। उसका ड्यू इंटेलिजेंस अपनी यूज ही नहीं करते कि क्यों बना है, किस लिए बना है, इसका वैल्यू क्या है, ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो बिना जाने में फॉलो करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हाँ ये बढ़ रहा है तो हम भी खरीदेंगे। बट जैसे उसका प्रॉपर रियल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जो उसका कितना रियल वर्थ की बात आती है, तो वो ब्रेक कर जाता है, क्योंकि उसका यूज केस नहीं होता है बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का। अभी के स्टेज में हर एक दिन बहुत सारे नए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे लॉन्च हो रहे हैं, बट विदाउट एनी यूज केस। वो जो VCs और वो जो चालू करते हैं, उनका माइंडसेट सिंपल यही है कि हम कोई भी मार्केट बूम में चल रहा है, राइट, तो लेट्स लिस्ट आउट एनी क्रिप्टो करेंसी, उसमें से पैसे बनाते हैं और आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं। तो नॉर्मल यूजर का लॉस हो जाता है इन शॉर्ट, बट जो बनाते हैं उनका फायदा होता है। वो पैसे बना के निकल जाते हैं और फिर सेम से वही काम कर रहे हैं कि और दूसरा कोई करेंसी बनाएंगे, पैसे बना लेंगे और फिर आउट हो जाएंगे। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले या क्रिप्टो में एंटर होने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि ये चीज क्या है, ये क्यों बन रही है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये चीज को लेके मैं क्या बाय कर सकता हूँ, क्या सेल कर सकता हूँ, मैं किन लोगों के साथ में या किन कंट्रीज या किन प्रोजेक्ट या किन कंपनीज के साथ में मैं इसका यूज कर सकता हूँ, इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, देन ओनली यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो। इवन मैं भी नहीं जाता हूँ इसमें, क्रिप्टो में ज्यादा, बहुत खतरनाक चीज है ये। ऐसे क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि जनरली जैसे मैं थोड़ा इसको स्टॉक मार्केट से रिलेट कर रही हूँ कि दिस, बट ये स्टॉक मार्केट तो है, इट्स एज
स्टॉक मार्केट इज वॉलेटाइल, दिस इज ऑल्सो वेरी वॉलेटाइल, बट अभी आपने एक टर्म यूज करा कि इट्स नॉट एन एसेट, इट्स अ डिजिटल करेंसी, राइट? तो अगर जैसे नॉर्मल पैसे हैं जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हमें उस पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम विड्रॉ करके सामान खरीद लेते हैं, ठीक है? हमारे नॉर्मल करेंसी का यूज़ केस ये हो गया कि क्रिप्टो करेंसी हम यूज़ कैसे करेंगे? बढ़ती ही रहेगी मान लो, या बढ़ी या घटी, तो हम उसका, बिकॉज ये एसेट तो है ही नहीं, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? वही क्रिप्टो करेंसी इज अ करेंसी, ठीक है? आप उसको जब वॉलेट में स्टोर करके रखते हैं ना, तो समझो कि आपके पैसे है वो, लाइक इट्स लाइक अ 10 रुपी नोट, और ऐसा कुछ कंसिडर करो उसको, हर एक कॉइन को, ठीक है? देन अभी क्या हो रहा है ना, मैं वो बोला कि अभी मार्केट इतना वोलेटाइल है, लेट्स वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बट आइडियली मतलब इवेंचुअली इन फ्यूचर में ऐसा होगा कि सारे क्रिप्टो करेंसी जो मेन है, जो जिसका यूज केस है, जो लिटरली रियल यूज केस है, वो सेम लाइन में रहेंगे, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। उसको स्टेबल कॉइन भी बोलते हैं मोस्टली, ठीक है? वो स्टेबल कॉइन से आप कोई एसेट बाय करोगे, लेट्स से आपने कोई घर बाय किया, आपने मोबाइल बाय किया, आपने कॉफ़ी बाय कर सकते हो आप। तो जिस तरीके से अभी हम इंडिया में यूपीआई करते हैं, राइट? इवेंचुअली इन फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप क्रिप्टो के थ्रू कोई चीज़ बाय करेंगे। ये होता है प्रॉपर डिजिटल करेंसी का यूज केस, कि आप कोई चीज़ उसको खरीद रहे यूजिंग दैट करेंसी। ये वैसे बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक पॉइंट है, राइट? क्योंकि अब ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है, तो इसमें इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ड्रिंग एंड ऑल के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, बट लेट्स नॉट गो इनटू इट, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सो एज यू सेड कि अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर नॉलेज रखो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद ओनली गेट इनटू इट, एंड ऑल्सो नो व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इट, एंड किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स से आई प्ले सेफ एंड आई एम लाइक, अभी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में, डेट में थोड़ा बहुत, इक्विटी एंड डेट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करती हूँ। सो क्या अपनी एक सैलरी का छोटा सा पोर्शन निकाल कर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ी सी नॉलेज के साथ, या अभी नहीं करना चाहिए करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से? मैं तो रिकमेंड करूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी सी नॉलेज है, उतना ही पैसा आप किसी और चीज़ में लगाओ, या अपने अपने आप को स्किल अप करने में लगाओ, ठीक है? क्योंकि आपको छोटा सा ही पोर्शन करना है ना, तो इतना रिस्क क्यों लेना? उससे अच्छा कुछ और कर लो भाई। बट हाई रिस्क हैज हाई गेन्स, राइट? हाई रिस्क हैव हाई गेन्स। लाइक इट्स डिपेंड ऑन अगेन इंडिविजुअल कि वो उसको रिस्क कितना लेना है, राइट? अगर वो रेडी है कि ये रिस्क मैं ले सकता हूँ, छोटे से पैसे अगर इसके जीरो भी हो गए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो देन टेक अ रिस्क। चलिए अब थोड़ा ना हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं कि चलो इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली घुसना कैसे है। तो वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस ने अब ब्लॉकचेन को एज अ करिकुलम इंक्लूड किया है, बट स्टिल नॉट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव डन दिस। सो लेट्स से किसी बच्चे को स्टार्ट करना है ब्लॉकचेन पढ़ना, सो व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट स्टूडेंट? स्टार्टिंग पॉइंट इज लाइक, आपको सबसे पहले ओवरऑल थ्योरी समझनी पड़ेगी कि व्हाट एग्जैक्टली ब्लॉकचेन, वेब 3 क्या है, वेब 2 से वेब 3 में क्यों जा रहा है, व्हाट इज देयर नीड, राइट? एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, ये आपको पहले ही समझ में आना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू एनी न्यू टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट ब्लॉकचेन। आपको पहले थोड़ा सा ऊपर से रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, राइट? एंड अभी रही बात कि उसको एंटर कैसे करना, ये आपका इंटेलिजेंस हो गया, मतलब आपने एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रिसर्च कर ली, देन आपको डिसीजन बनाना कि हाँ मुझे सच में ब्लॉकचेन में जाना है या नहीं जाना। अगर लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया मुझे जाना है, तो आपको स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल, कोई प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉलिडिटी समझिए, उसके टूल्स है, रिमिक्स को यूज़ करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाइए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कीजिए, राइट? तो चेन को समझिए, चेन में आपको फ्री टोकन्स मिलते हैं वॉलेट से, तो वो कीजिए। देन यू हैव टू बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक लॉटरी प्रोजेक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, लाइक समथिंग आप बनाइए, NFT प्रोजेक्ट बनाइए। तो जब ऐसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। ये तो हो गया अपनी तरफ से, बट और साइड में आप स्ट्रगल ये कर सकते हैं कि यू हैव टू कनेक्ट विथ योर पीयर्स जो ऑलरेडी इस स्पेस में काम कर रहा है, या जो आपके कनेक्शन में है, जो ब्लॉकचेन डेवलपर हो या ब्लॉकचेन कम्युनिटी से कनेक्टेड है, उनकी एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो आपको करंट मार्केट स्टेट बताएंगे, वो आपको बताएंगे कि कौन से टाइप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बनाने चाहिए। क्योंकि अभी जो मार्केट है ना, बहुत स्पीड से वैरी हो रहा है। पहले की जो, अभी मैं बताऊँ कि 2 साल पहले जो रिक्वायरमेंट थी हायरिंग की, और अभी की बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले इजी था क्योंकि लोगों को सिर्फ पहले ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए थे। अभी कैसा हो गया, अभी सिचुएशन बहुत खतरनाक, मतलब डिफरेंट है। नाउ इट्स टफ टू गेट इनटू दी जॉब मार्केट, यू नीड मच स्किल,
आपको काफ़ी अच्छा तगड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको उसमें प्रॉपर जॉब मिलती है। एंड तगड़ा नॉलेज बनना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट थिंग। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी नॉलेज गेन करना इतना मुश्किल भी नहीं है इफ़ यू नो द राइट स्टेप्स एंड इफ़ यू मेक योर बेसिक्स क्लियर। शुरुआत से अगर इफ़ यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट मेकिंग ईच ऑफ योर स्टेप्स क्लियर, हर स्टेप पे यू आर वेरी श्योर कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है, आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है कि नहीं करी है। तो अगर बेसिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे, सो इट्स जस्ट एन एडेड लेयर विच हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर यू गेट इंट्रोड्यूस टू समथिंग न्यू अगेन. So now that we are talking about learning, so can you tell us some free resources, tools and techniques to learn the blockchain technology? सबसे पहले तो आपको रिमिक्स टूल को यूज़ करना चाहिए, विच इज़ यूजफुल फॉर राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देन देर इज़ अ वन टूल कॉल्ड क्रिप्टोजॉम्बी, वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप राइटिंग डैप्स बनाना सीख सकते हैं। डैप्स इज़ लाइक डिसेंट्रलाइज ऐप ओनली, लाइक यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रंट एंड बैक एंड थिंग। तो क्रिप्टोजॉम्बी को पढ़िए, लाइक गेमिफाइड वे में आप सब प्रॉपर जर्नी बनती है कि आपको ये स्किल आ गया, फिर वो आ गया, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन टूल्स। और उसके साथ में कुछ सर्टिफिकेशंस के भी प्लेटफॉर्म है, लेट्स से कोर्सेरा से भी आप सीख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्री में। कुछ ब्लॉकचेन के फ्री सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। एडेक्स है, EDX, लाइक एडेक्स इज़ लाइक वहाँ पे आप प्राइवेट ब्लॉकचेन का काफ़ी अच्छा मटेरियल है वहाँ पे, हाइपरलेजर फैब्रिक, हाइपरलेजर इंडी, बेसू एंड अदर हाइपरलेजर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो वो पूरा फ्री है, बट आपको सर्टिफिकेशन करना हो तो देन ओनली हैव टू पे, बट फॉर लर्निंग पर्पज इट्स फ्री। सो ऐसे कुछ एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस, इथेरियम का हो गया, पॉलीगॉन का हो गया, बाइनेंस का हो गया, एंड ओपन जेपलिन पे सारे ERC टोकन्स के काफ़ी अच्छे से डिटेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं। सो यू कैन रेफर दोज एज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस। सो या, दीज आर माय एडवाइस फॉर। So since you're already connected with a lot of people in the community and you're already working as a blockchain developer, तो आपके अकॉर्डिंग what sort of projects a student should make जो कि उनके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करे? तो बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट्स। तो आप नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन से। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ERC20 टोकन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ERC721 टोकन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 1155 टोकन ERC बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट प्लेस कैसे बनाते हैं, राइट, लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिक में बना सकते हैं आप, डिसेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, सप्लाई चेन ट्रैकिंग का, एक्सचेंज। अगर आपको मेजर प्रोजेक्ट में बात करूँ तो मैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बना सकते हैं आप, NFT मार्केट प्लेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, आइडेंटिटी बेस्ड मैनेजमेंट बना सकते हैं आप, हाउ कैन यू वेरीफाई बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटी, ये प्राइवेट ब्लॉकचेन में आता है। दिस इज गोना बी हेल्पफुल फॉर पीपल बिकॉज जनरली क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज़ नहीं होता कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये बहुत हेल्पफुल होगा लोगों के लिए. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं पूछूँ कि लेट्स से सॉलिडिटी प्रैक्टिस करनी है या रीमिक्स प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? हाँ, प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म मैंने जैसे पहले ही बोल दिया है कि क्रिप्टोज़ॉम्बी एंड रिमिक्स पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे हैंड्स ऑन करने के लिए वो अवेलेबल। अच्छा, ओके, इट्स Solidity लाइक का अपना VS कोड जैसा है. एग्जैक्टली वो VS कोड जैसा ही है, और वहाँ पे आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हैं एंड यू विल गेट द फ्री टोकन्स ओवर देयर, यू डोंट नीड एनी रियल करेंसी। जैसे कि हमें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो हमें टोकन्स चाहिए या क्रिप्टो करेंसी चाहिए अपने वॉलेट में, तो वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ. और अपना मेटामास्क भी आप एक्सटर्नल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग रिमिक्स ओनली, जब आपको एंड टू एंड टेस्टिंग करनी हो। सो इट्स काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी एडवांस टूल है वो। अच्छा, ओके, गॉट इट. सो जैसे कि अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि फ्रंट एंड बैक एंड या ओवरऑल फुल स्टैक की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है इन दिस टेक्नोलॉजी. सो इसके अलावा और कोई टेक स्टैक है क्या जिनको सीखना चाहिए, जिनकी इंपॉर्टेंस होगी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में? यस, देखो, ब्लॉकचेन डेवलपर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना ही आना चाहिए, नहीं। ये ना जो ब्लॉकचेन में बनाते हैं वो कोर होता है पूरे एक बड़े से प्रोजेक्ट का, तो वो मोस्टली वन टाइम एक्टिविटी होती है या फिर बहुत लॉन्ग टाइम बाद हम उसको रिन्यू करते हैं, ठीक। तो ब्लॉकचेन डेवलपर क्या करेगा फिर उसके अलावा? उसको फ्रंट एंड आना चाहिए, उसको बैक एंड आना चाहिए, उसको डेटाबेस समझना चाहिए, राइट। तो उससे ना वो बाकी की चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो उसको प्रॉपर फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए। अगर एक कोई फुल स्टैक डेवलपर बंदा ब्लॉकचेन में जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सिंपल, जिसको सिंपल सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना ही आता है या सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना आता है। सो ये रिलेवेंस रहेगा। और साथ में आप क्रिप्टोग्राफी सीख सकते हैं, ऑडिटिंग होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग,
ये एक अलग स्किल है। एंड देन यू कैन हैव, अगर आप एक्सपीरियंस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आप अभी स्विच करना चाह रहे हो और आपको डॉकर, कुबरनेटिस या क्लाउड का तगड़ा नॉलेज है, तो यू कैन मूव इन टू प्राइवेट ब्लॉकचेन स्पेस में। वो आपकी स्किल्स वहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। So now let's talk about resume. So what makes a blockchain developer's resume stand out of the crowd? वैसे तो रेज्यूमे अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो भी गया आपने स्टैंड आउट करके भी, तो मैटर करता है एट द एंड इंटरव्यू, ठीक। तो बट पहले रिज्यूमे स्टैंड आउट करना है तो सिंपल बात करते हैं कि यू कैन ऐड एज मच एज वैलिड प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे। और जो भी आप रेज्यूमे में ऐड करते हो ना, मेक श्योर कि वो आपको 100% पता हो। ऐसा नहीं अभी मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐड करो तो आप खुद से ही कुछ ज़्यादा ही लिस्ट ऐड कर दो, फिर आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई दोज थिंग्स, तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, ठीक। तो जिस तरीके से हमने पहले मेंशन किया है कि आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट कीजिए, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, या कुछ आपने अगर रिसर्च पेपर में कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि अभी कैसा है ना, ओपन कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आपने किसी के गिटहब रिपो में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन, तो वो आप अपने रिज्यूमे पे ऐड कीजिए। वो आपका रिज्यूमे बहुत स्टैंड आउट करता है, क्योंकि वेब3 इज़ लाइक मोर रिलाई ऑन ओपन कम्युनिटी, और वो ओपन कम्युनिटी पे ज़्यादा बिलीव करता है, ओपन कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करता है। तो आप ओपन कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हो अलॉन्ग विथ योर प्रोजेक्ट्स, एंड अल्टीमेटली व्हाट आर द स्किल सेट यू हैव, राइट। सो वो मैटर करता है, स्किल सेट विथ योर कंट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स, ये 3 की चीज़ें हैं। सो अभी इंडियन मार्केट की बात करें तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सैलरी रेंजेस फॉर अ ब्लॉकचेन डेवलपर, एंड आर देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर रिमोट एज वेल? तो रिमोट जॉब्स तो है, बिल्कुल है। रिमोट भी है, हाइब्रिड भी है, ऑन साइट भी है, सारे टाइप के जॉब्स अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ थोड़ा सा उसको क्रैक करना अभी के सिचुएशन में टफ है, जस्ट करंट मार्केट के हिसाब से, क्योंकि उनकी डिमांड अभी बढ़ चुकी है। मोस्टली दे आर नॉट हायरिंग फॉर फ्रेशर्स, जो एकदम अभी जिन्होंने स्टार्टअप चालू किया है, दे वांट टू क्रिएट देयर MVP और POC काइंड ऑफ स्टफ, तो वही सिर्फ फ्रेशर को हायर कर रहे हैं एट द रेंज ऑफ, अगर मैं बात करूँ तो लाइक अराउंड 6 to 7 और 10 LPA तक की बात हो सकती है वहाँ पे, राइट। स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की। बट MNCs में वो उतना भी नहीं देते हैं, MNCs में वो कम ही देते हैं। आपको पता है MNC में कितनी रेंज रहती है, तो वो नॉर्मल, लेट्स अज्यूम जितनी भी नॉर्मल होती है उससे लगभग 1 लाख या 2 लाख ज़्यादा, ठीक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिमोट, मतलब कंपेयर्ड टू नॉर्मल डेवलपर्स 1 लाख 2 लाख ज़्यादा ही रहती है। हाँ ज़्यादा रहती है, लाइक ऑफ कोर्स। और रिमोट की बात करूँ मैं, अगर आप फॉरेन कंपनीज के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे अराउंड 60K से 120K तक डॉलर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसकी सैलरी रेंज ये है। सो मुझे ऐसा लगता है कि करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अगर कोई ढंग से प्रिपरेशन कर रहा है, सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, थोड़ी कम है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सके, लेकिन जॉब है, ऐसा नहीं कि जॉब्स हैं नहीं। जॉब है, जॉब बिल्कुल है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी के मार्केट में उसको क्रैक करना नॉट दैट ईजी। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट अगर आप एक्सपीरियंस है, आप ऑलरेडी 1-2 साल ब्लॉकचेन किया है आपने, तो ऑफकोर्स आपके लिए काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। और सीनियर्स के लिए पैकेज भी अच्छा मिल जाता है ब्लॉकचेन में। ठीक है। तो अगर, लेकिन अभी मैं फ्रेशर्स की बात करूं और अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे प्रोसेस पूछूं कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड कैसे क्रैक करना है इंटरव्यूज, सो व्हाट विल बी योर सजेशन? ओके, तो सजेशन मेरा रहेगा कि आप हैकेथॉन्स में जाइए, हैकेथॉन्स कनेक्ट कीजिए, Web3 कम्युनिटी में रहिए। क्योंकि कैसा होता है ना, मैंने जैसे पहले ही बोला है कि Web3 बिलीव इन ओपन कंट्रीब्यूशन और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेज ज़्यादा फॉलो करता है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि जो बंदा या इंडिविजुअल, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी, वो ईगर टू लर्न होता है। सबसे पहले उनका अप्रोच होता है कि अगर आप एफर्ट मार के हमारे कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब यू वांट समथिंग फ्रॉम अस, ठीक है। तो वो आपका एक नॉर्मल अप्रोच देखती है, आपके पास में स्किल है। हैकेथॉन में कैसा होता है ना, आजकल जितने भी HRs है जिनको भी हायर करना होता है, स्टार्टअप्स या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वो डायरेक्टली हैकेथॉन से ही हायर कर लेते हैं। दे वोंट फॉलो दिस आवर ओल्ड अप्रोच कि आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड ऑल दोज थिंग। वो अभी बहुत कम हो गया है प्रॉपरली। तो Web3, अगर मैं Web3 की कोर Web3 की बात करूँ तो वो ये वाला अप्रोच फॉलो करता है। अगर आप कोई Web3 कम्युनिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो वहाँ पे जॉब पोस्टिंग वहाँ पे आती है, वो रिक्वायरमेंट देते हैं अपने कि हे आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्पज, तो आप वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल सकती है, राइट। और फिर अपना नॉर्मल प्रोसेस तो है, तो आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी पे अप्लाई कर सकते हैं,
So yeah, these are the few key things. That's good to know. Yeah. So let's come to the end of the podcast. And what advice would you like to give to the blockchain developers or blockchain enthusiasts out there who are listening to us? या सो एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि मुझे पता है जर्नी स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ लगती है, बट डोंट स्टॉप, प्लीज कीप गोइंग. जब तक आप अचीव नहीं कर लेते व्हाट यू वांट, प्लीज डोंट स्टॉप एंड कीप गोइंग. आपको अंत में वो मिल ही जाएगा जैसे मुझे मिला. सो आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये पॉडकास्ट सुन के मज़ा आया हो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच अक्षय फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड गिविंग योर टाइम टू अस. थैंक यू शिवांगी, इट्स सो ग्लैड कि मैं आपके चैनल पे आया और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाया कम्युनिटी में. सो थैंक्स फॉर दैट. Yeah, thank you Akshay. Guys, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell notification so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.